شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مارکیٹ میں تھائی لینڈ ادرک 500 اور لہسن 480 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ بھنڈی 320، اروی 480، مٹر اور ٹینڈے 320 جبکہ ٹماٹر 80 روپے فی کلو ہیں۔ لیمو 400، ہری مرچ 120، پیاز 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں ہری مرچ 90 اور پیاز 130 روپے فی کلو مقرر ہے۔ عام مارکیٹ میں فالسا اور آڑو 600 جبکہ لوکاٹ 320 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مختلف اقسام کے سیب 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں جبکہ کیلا 160 روپے درجن، خربوزہ 160 روپے کلو، تربوز 2 اور چیکو 220 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ شہر میں چکن 498 روپے کلو جبکہ فارمی انڈے 250 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ ارشفہ آصف، روہی، ملتان۔ شہر اولیا میں تجاوزات کی بھرمار، انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کاغذوں تک محدود۔ پرانا شجاع آباد روڈ پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ملتان شہر میں تجاوزات مافیا بے لگام، تجاوزات کے خلاف آپریشن کاغذی کارروائیوں تک محدود۔ انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے کا حل نکالنے میں ناکام۔ پرانا شجاع آباد روڈ پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ سڑک کے دونوں اطراف ریہڑی بانوں کا قبضہ ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اسکول اور شام کے وقت روڈ سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ دکان کے آگے دکان بنائی ہوئی ہے، اس کے آگے پھر ریڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، ان سے بھی کرایہ لیتے ہیں، پھر جگہ تو ملتی نہیں ہے۔ نیچے سارے روڈ کے اوپر سارا پتھر پڑا ہوا ہے، بندہ تو یہاں پہ ہے نہیں، یہاں پہ سمجھ لیں کہ ایک پتھر ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ آفس سے واپس گھر جاتے ہوئے اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ سڑکوں کے اوپر کھڑے ریہڑی بانوں کو انتظامیہ قابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ایک طرف یہ تجاوزات ہیں تو دوسری طرف ٹوٹا ہوا روڈ۔ تجاوزات کے باعث اس سڑک سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ بس ادھر توجہ دے اس سائڈ کی طرف، بس یہ ریڈیوں کے جیسے کھڑے ہیں، یہ عام آدمی بھی نہیں چل سکتا، پرابلم ہی ہے۔ وہ آتے ہیں کرتے ہیں، پھر دوبارہ ریڈیاں لگ جاتی ہیں، سب کچھ لگ جاتی ہے۔ اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ 5 منٹ کے لیے آتی، پھر دوبارہ چلے جاتے، پھر چلے جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ مستقل آپریشن ہی تجاوزات کے خاتمے کا حل ہے۔ کیمرہ مین حسیب احمد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ہارون آباد کی مین سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات معمول بن گئے۔ ہارون آباد کے نوائی علاقہ اڈا شہید چوک کی سڑکیں عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ سڑکوں پر موجود گڑھے آئے روز حادثات کا سبب بننے لگے۔ شہریوں اور تاجروں کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر پانی جمع ہونا معمول بن گیا ہے۔ روڈ پر اڑنے والی دھول اور گرد و غبار سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ 2-3 سال سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ بارش آ جاتی کہ بچے توڑ کر بیمار ہو، لنگنا اوکھا ہو جاتا، لنگ نہیں سکتے بندے اتوں دی، اینی مٹی اڑتی ہے، خیر ہو جاتی ہے۔ 3-4 سال سے یہ ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر سے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو جب بارش ہوتی ہے تو گٹروں کا پانی یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ یہی بھی چلو مہربانی سڑک بن جائے تو چلو شہریوں واسطے اچھا ہو جائے، کھان پینے والی چیزاں بھی صاف رہندیاں ہیں تو بارش دے وچ لنگنا بہت اوکھا ہو جاتا ہے۔ شہریوں اور تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کو جلد تعمیر کروایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سرجیل حاشر، روہی، ہارون آباد۔ جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح بہاولپور بھی آم کی پیداوار میں اپنی مثال آپ تھا۔ موجودہ دور میں شہر کے مضافات سے آم کے باغات کا مکمل صفایا کر دیا گیا ہے۔ آم کی پیداوار کے حوالے سے مشہور ضلع بہاولپور اپنی پہچان کھونے لگا۔ شہر کے مضافات میں بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث آم کے باغات کا مکمل صفایا ہو گیا۔ آم کے وسیع اور اس باغات کی جگہ دن بدن پھلتی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے لے لی۔ شہر کے مضافات میں تقریباً 50% باغات پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں تعمیر ہو چکی ہیں۔ رہی سہی کسر موسمی بیماریوں نے پوری کر دی۔ انشاءاللہ یہ آم پہلے آئے گا سرولی، ٹھیک ہے نا، 1 جون تک آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس دفعہ بہاولپور میں آم بہت کم ہے، ہر جگہ کم ہے، بہاولپور میں نہیں ہر جگہ کم ہے موسم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا۔ اس دفعہ موسم بڑا ٹھنڈا تھا، اس لیے پیداوار اس کی بہت کم ہے، 50% کم آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ ذائقے میں بھی اچھا ہے آم، کھانے میں بھی اچھا ہے۔ اور ادھر جو باغ تھے بہاولپور میں ان لوگوں نے ختم کر دیے ہیں، سوسائٹی بنا لی ہے، باغ ختم ہو گئے۔
काश्तकारों का कहना था कि मौसम सरमा के बायस आम की फसल 50% कम हो चुकी है। तेले और बुर की बीमारी पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। बहावलपुर में हर किस्म का आम पैदा होता है। सरौली, लंगड़ा, चौसा और दुशहरी काबिले जिक्र हैं। 1 जून से सरौली आम की पैदावार शुरू हो जाएगी। पानी लगाते हैं, पानी लगा के इसका जब पैदा होता है ना, ठीक है, बटूर वगैरह होता है, जब आम निकलता है उसका बटूर काटते हैं, उसको फिर स्प्रे लगाते हैं और जो मक्खी लगती है उसको है ना बोतलें लगा के उसके अंदर स्प्रे लगाते हैं। उसके बाद फिर पानी लगाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह। अब आम तैयार होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। जब तैयार होगा फिर बहुत अच्छा टेस्ट होगा। काश्तकारों का मजीद कहना था कि हुकूमत किसानों को फिर से आम की काश्त की तरफ रागिब करे। हुकूमत की तरफ से किसानों को मौसमी बीमारियों के तदारुक के लिए आगाही फराहम की जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से किसान परेशान। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के बावजूद काश्तकारों की गंदम हुकूमती रेट्स पर फरोख्त ना हो सकी। छोटे किसानों के साथ बड़े जमींदार भी मुश्किलात से दो चार। जनूबी पंजाब का किसान हुकूमत के रहमो करम पर पाकिस्तान दुनिया का छठा ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम बदहाली का शिकार है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस किसान की गंदम फरोख्त ना हो सकी। प्रोग्राम बनाम सरकार में किसानों का कहना था कि पेट के इलाके में सिर्फ गंदम ही काश्त की जा सकती है, हमारा जरिया माश गंदम पर ही चलता है। हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। स्टोरेज का मसला है, इसको पैक करने का मसला है, उसके बाद दूसरी फसल लगाने के लिए उसके लिए भी कैपिटल जरूरत है। तो इसीलिए हमारा मेन फोकस है कि जिस रेट पे भी निकले उसको निकालें, क्योंकि हमें ना फूड कोई रिस्पांस दे रहा है, ना कोई पास्को रिस्पांस दे रहा है, कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा। तो इसीलिए हम अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करें। पास्को वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं 700 रुपये बोरी के पीछे रिश्वत है, उसके अलावा 3 किलो उसके पीछे काट है पड़ी, वो हिसाब वही 3031 में आके पड़ता है। काश्तकारों का कहना था कि इस साल गंदम की पैदावार बहुत अच्छी हुई, मगर हुकूमत गंदम खरीदने को तैयार नहीं। आगे सोचना होगा गंदम काश्त करें या ना करें। हुकूमत अपनी पॉलिसियों को तब्दील करे और किसान से गंदम खरीदे। पहले ये होता था कि जैसे ही गंदम उतरती थी व्यापारी आ जाता था और आने के बाद जो है ना वो सेल आउट हमारी हो जाती, शुरू हो जाती थी। अब तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है। सेंटर पे अब बकैनी में व्यापारी गए बैठे हैं, सेंटर पे बंदा ही नहीं है, ड्यूटी भी उन्होंने खत्म कर दी है। प्रोग्राम बनाम सरकार में किसानों का कहना था कि अगर हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो आइंदा साल गंदम की काश्त नहीं करेंगे, जिससे मुल्क में गंदम का बहरान पैदा होगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में जराइम पेश अनासिर बेलगाम, चोरी, डकैती, कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। पंजाब पुलिस की मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक रोज में 91 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। मुख्तलिफ थानों में 65 नए मुकदमात दर्ज। बिजली चोरों को 59,62,000 रुपए जुर्माने आए। वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 सार्फिन की बिजली मुनक़ता। बात करेंगे मुल्तान के हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। नून लीग की अहम विकटें गिरने लगीं। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर की हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक MPA सीनियर लीगी रहनुमा शहजाद मकबूल भुट्टा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुल्तान के हल्का NA148 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। हल्के में सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर की हिमायत का ऐलान कर दिया और साबिक MPA मलिक अरशद राह ने साथियों समेत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक MPA व सीनियर लीगी रहनुमा शहजाद मकबूल भुट्टा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। शहजाद मकबूल भुट्टा ने अली मूसा गिलानी और अली कासिम गिलानी के हमरा अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। हल्का में अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर महे में कांटे मुकाबला मुतवक्के। शहरियों का कहना है कि हल्के में अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस सीवरेज, साफ पानी और तालीम जैसे मसाइल जूं के तू हैं। सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम है। हमने चेयरमैन सेनेट को भी कहा है और इंशाल्लाह अपने जो लीडर हैं उनको भी कहा है कि इंशाल्लाह सीवरेज का बहुत अहम मसला है मुल्तान में। हल्का NA148 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। उम्मीदवारों की तैयारियां अरूज पर। मुस्लिम लीग नून ने PP 269 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया।
मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 269 में जिमनी इंतखाब का मामला। मुस्लिम लीग नून ने हल्का पीपी 269 के जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। लीगी एमपीए अजमल खान चांडिया की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजमल खान चांडिया, साबिक लीगी उम्मीदवार मंजूर खान चांडिया और साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अकरम खान चांडिया ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास कुरैशी की हिमायत का ऐलान किया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं शुक्रगुजार हाँ इतना मौजूद हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का, हर जवान का, हर बिरादरी तो ताल्लुक रखने वाले हर फर्द का, बच्चे भी आए हुए, नौजवान भी आए हुए कि तुसा मेहरबानी की, तुसा मुफ्त से वक्त दे विच अज इतना तशरीफ घेर के आए हुए और तुम्हारी जी तशरीफ आवरी है ये सारी इज्जत अफजाई तो मतलब जी सारी इज्जत अफजाई की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एमपी अजमल खान चांडिया का कहना था कि वो और मुस्लिम लीग नून की मकामी क़ियादत पार्टी फैसले के मुताबिक पीपी 269 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास कुरैशी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। इनकी इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मियां अलमदार अब्बास कुरैशी का कहना था कि वो ज़िमनी इंतखाब में हिमायत पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और मकामी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। सब तो पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का बेहद मशकूर हाँ कि उन्हें मेरे उत्ते एतमाद किए और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट दी है। और उन्हें बाद मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत का मशकूर हाँ कि जिन्होंने मेहरबानी करके अपने सारे जितना उन्होंने अपने MPA टिकट होल्डर जितना उन्होंने दोस्त सारे को उन्होंने मेरी हिमायत की खातिर इंस्ट्रक्शन दी है। हल्का पीपी 269 में जिमनी इलेक्शन का मैदान 18 मई को सजेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महंगाई से सताई अवाम के लिए खुशखबरी। रहीम यार खान में चिकन 50 रुपए सस्ता हो गया। मार्केट में चिकन 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। रहीम यार खान में इंतजामिया महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में कामयाब होने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी। मार्केट में चिकन 50 रुपए सस्ता होकर 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कहना है कि डिमांड में कमी और सप्लाई बढ़ने से चिकन सस्ता हुआ। आइंदा दिनों तक चिकन मजीद सस्ता होगा। ये है कि शादियों का सीजन खत्म हो रहा है, ऊपर से गर्मी भी शुरू हो गई। गर्मी में भी लोग चिकन कम खाते हैं, उसकी सेल जो है ना कम हो गई है। इसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि 50 रुपए किलो और कम हो गई है, 500 रुपये रेट हो गया है। और चिकन भी ज़्यादा तैयार हो रहा है। अब जब ज़्यादा तैयार हो रहा है तो फिर उसकी ज़ाहिर आगे डिमांड तो कम होगी ना, कम हो गई। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया का चिकन की कीमत में कमी लाना काबिले तारीफ इकदाम है। महंगाई से हर शहरी का गुजर बसर मुश्किल हो रहा था। महंगाई को कंट्रोल करना वक्त की अहम जरूरत है। बहुत खुशी होती है। चिकन पहले बहुत महंगा था, अब सस्ता हो गया। मजीद बाकी चीजें भी ऐसे सस्ती करनी चाहिए, बस हमें यही रिलीफ मिल जाए। शहरी ने इंतजामिया से चिकन की कीमत में मजीद कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। शहरियों के लिए अच्छी खबर, गाड़ियां सस्ती हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां 4 लाख से 15 लाख रुपए सस्ती हो गई। शहरियों के लिए अच्छी खबर, गाड़ियों की कीमत कम हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां 4 लाख से 15 लाख रुपए सस्ती हुई हैं। शहरियों का कहना था कि गाड़ी की कीमतें कम होना खुशाइन बात है। जो लोग कम पैसों में अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो अब खरीद सकते हैं। जो शहरी खुश हैं कि जिन गाड़ियों के रेट नीचे आने की वजह से, उनमें वो शहरी भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके या तनख्वाहों में से पैसे सेव करके गाड़ियाँ खरीदी और आज उनकी गाड़ियाँ 20-20 लाख रुपया डाउन हो गई हैं। लेकिन फिर भी चलें, दुआ है कि अगर गाड़ियों के रेट नीचे आएंगे तो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो थोड़े कम पैसों में अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग अगर गाड़ियाँ लेने आते हैं तो गाड़ियों का रेट जो है वो पुरानी गाड़ियों का रेट वहीं खड़ा हुआ है, नई गाड़ियों का रेट जो है वो नीचे आ गया। अब हमारे लिए मुश्किल ये हो गया कि हम कौन सी गाड़ी परचेज करें। शोरूम मालिक राना फहद अली शेर का कहना था कि जिन गाड़ियों की सेल नहीं होती उनकी कीमतें कम हुई हैं। गाड़ियों का काम ठप हो चुका है। लोग अभी इंतजार में हैं कि बाकी कंपनियां भी रेट कम करेंगी। कारोबार भी पहले बहुत स्लो था, अब लोगों के जहन में ये है, सब इस इंतजार में है कि होंडा भी अपनी कीमतें गिराएगी, करोला भी अपनी कीमतें गिराएगी। तो इसलिए अब मार्केट थोड़ी सी क्रैश तो हुई है मार्केट, लेकिन ये है कि अल्लाह करे बाकी कंपनियां भी ऐसे ही रेट कम करें तो वक्ती तौर पे तो नुकसान है ताजरों को, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर कारोबार का सर्कल चलेगा। शोरूम मालिकान का कहना था कि कंपनियां गाड़ियों के रेट्स को मुस्तहकम करेंगी तो कारोबार में बेहतरी आएगी। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। जहानिया में होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जेरे निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में शहरियों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गई।
जहानिया में होम्योपैथिक एसोसिएशन के जेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत की। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह ख्वाजा शाहजेब ने किया। फ्री मेडिकल कैंप में 500 से ज्यादा मरीजों का इलाज और अद्वियात फराहम की गयी। डॉक्टर्स का कहना था कि होम्योपैथिक कदीम तरीका इलाज है, जिससे लाइलाज मरीजों का कामयाब इलाज किया जा रहा है। जी, यहाँ पे ये जो है दाऊद होम्योपैथिक क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया। उस सिलसिले में यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पे तकरीबन 500 से ऊपर पेशेंट का चेकअप का एस्टीमेट बनाया गया। लेकिन यहाँ पे लोगों की तादाद देखते हुए हमें महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद तक मरीज़ यहाँ पे आएंगे। जो लोग मनफी जो जहनीत के सोच के हामिल हैं या मनशियात के आदिल अफराद हैं, उनका भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है लिवर सोरासिस, पेट में पानी आना और फेफड़ों में पानी आना और दीगर जोड़ों के दर्दों के अमराज हैं, जो आजकल भी नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो एक से दूसरी बीमारियों की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उनका मौसर होम्योपैथिक तरीका इलाज किया जा रहा है। होम्योपैथिक जमाना कदीम से इंसानियत की खिदमत कर रही है। अब लोग होम्योपैथिक से इलाज करवाकर कैंसर समेत दूसरी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, मगर हुकूमत होम्योपैथिक को सपोर्ट नहीं कर रही। डॉक्टर्स का कहना है कि होम्योपैथिक कैंसर, लीवर, सेरोसिस, मनफी सोच के हामिल अफराद और मनशियात के आदि अफराद के लिए इंतहाई मौसर साबित हो रही है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही, जहानिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली की जेर सदारत सैलाब की मुमकिन सूरत हाल पर इजलास। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमे सैलाब से निमटने के लिए अपना अपना प्लान तैयार करके PDMA ऑफिस में जमा करवाएं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमे सैलाब से निपटने के लिए अपना अपना प्लान तैयार करके पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के दफ्तर में जमा कराएं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो अपनी अपनी तहसील में मुतल्लिका एक्सियन आबपाशी के साथ फ्लड बंदों का मुआयना करेंगे। महकमा आबपाशी के अफसरान फ्लड बंदों की तामीर और मुरम्मत के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। दरियाई इलाकों में कायम तजावुजात का खात्मा किया जाए और नालों की सफाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू 1122 के हुकाम को मई के पहले हफ्ते में मॉक एक्सरसाइज का इंतजाम करने और महकमा सेहत हुकाम को सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। DO PDMA इरफान सियाल ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल में जिला मुजफ्फरगढ़ की 3 तहसीलों को दोनों दरियाओं का पानी मुतासिर करता है। सैलाब की सूरत हाल में जिला भर में 27 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे। कैमरा टीम की हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में थैलेसीमिया के हवाले से एक रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद। डॉक्टर्स और असातिज़ा ने तुलबा को थैलेसीमिया के हवाले से आगाही फ्राहम की। इस मौके पर टेस्ट करवाने और खून अतिया करने का पैगाम भी दिया गया। मुल्तान एमर्सन यूनिवर्सिटी में हेल्थ सोसाइटी के ज़रिए तमाम थैलेसीमिया के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ज़िक्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राना जुल्फ़िकार, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अदनान खालिद और चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर कामरान इशफाक ने तुलबा को तफसीली आगाही फ्राहम की। उनका कहना था कि दुनिया ने थैलेसीमिया पर काबू पा लिया है, मगर पाकिस्तान में इसकी शरह 8% है। हर फर्द इस बीमारी का HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जरूर करवाए। कि हम जो है फीमेल भी कि जहां हम देखें अपनी कम्युनिटी में अगर कोई थैलेसीमिया मेजर बच्चा खुदारा उसको सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को सपोर्ट करें। मैंने वहां पे देखा कि सोशल बाइकआउट कर देते हैं लोग कि अभी ये हमारे बच्चे से ब्लड मांगने आ जाएंगे, फैमिली रिश्तेदार छोड़ जाते हैं साथ। क्लिनिकली वो बच्चे कैसे नजर आएंगे? ऊपर वाली पिक्चर देखें, बच्चा आपको कैसे लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। नीचे वाली पिक्चर देखें, उसकी शक्ल चेंज है, उसके चीक्स उभरे हुए हैं, माथा उभरा हुआ है, दांत उभरे हुए हैं। ऊपर वाला कैरियर है, नीचे वाला डिजीज है। थैलेसीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिकली एक डिजीज है जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होती है। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद किसी के साथ बैठ के खाने पीने से, कोई गलत इंजेक्शन लगवाने से या किसी जो मेडिसिन है उसके रिएक्शन की वजह से हमें ये बीमारी हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट आपको जो पेरेंट्स को अगर होगी तो ये आप में ट्रांसमिट होगी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान का कहना था कि इस मर्ज के हवाले से आगाही और तालीम देने की अशद जरूरत है ताकि मुआशरा सेहतमंद रहे। These are very few things that I am discussing with you. इंशाअल्लाह ताला इससे भी ऊपर होगा। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बोथ इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और आपको हम एक और ऑल यूज टू से कि आज वेर यू गो बैक तो हमारा सलाम कहें अपने पेरेंट्स को। कहते हैं आप लोग हैं से सलाम टू योर पेरेंट्स, तो कह दिया करें। अगर नहीं कहते तो जरूर कहा करें। दे डिजर्व आवर सलाम और हम उनकी इज्जत करते हैं, तो वो आपको यहाँ भेजते हैं।
शुगर ने मजीद कहा कि थैलेसीमिया से मुतासरा शख्स को साल में 15 खून की बोतलें दरकार होती हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि इंसानियत के नाते खून अतिया क्या करें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रूही, मुल्तान। सादिकाबाद में कपास की काश्त और पैदावार बढ़ाने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद। महकमे ज़राअत और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के इश्तिराक से मुनक्किदा सेमिनार में किसानों को आगाही फ्राहम की गई। सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और महकमा ज़राअत ने बाहमी इश्तराक से कपास के काश्तकारों के लिए सजाया आगाही सेमिनार, जिसमें ज़रई माहिरीन और किसानों ने भरपूर शिरकत की। ज़रई माहिरीन ने किसानों को कपास की काश्त, ज़मीन के तज्जिए, मियारी बीज और खाद के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की। ज़रई माहिरीन का कहना था कि कपास हमारी एक अहम फसल है जिसकी काश्त और पैदावार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़रई माहिरीन ने किसानों को कपास के ट्रिपल जेन बीज इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। FFC की मैनेजमेंट का मशकूर हूँ कि जॉइंट कैलिब्रेशन से उन्होंने फार्मर्स की आगाही के लिए सादिकाबाद में एक कपास का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की। मकसद टीम वर्क एक्टिविटी का काश्तकारों की हौसला अफजाई करना भी है और वो पोशीदा अवामिल जिनसे वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में मुगालते का शिकार हो जाते हैं या भूल जाते हैं, चलो उनको भी वहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया जाए और वो कपास की काश्त को भरपूर तरीके से जो है ना सर अंजाम दें। हेड ऑफ सेल्स FFC ज़हूर अहमद ने कहा कि किसान अपनी ज़मीनों का मुफ्त तज्जिया करवाएं, जिससे ज़मीन की तैयारी में मदद मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कपास की बिजाई का वक्त है और इसी मौके की मुनासबत से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने किसानों की आगाही के लिए और उन्हें जदीद ज़राअत से रोशनास करने के लिए कपास की मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया है। और इस सेमिनार से हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे काश्तकार भाई हैं वो हमारे जो ज़राअत के माहिरीन हैं उनके मशवरों पर अमल करके इंशाअल्लाह अपनी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा करेंगे और इसे भरपूर इस्तेफ़ादा करेंगे। सेमिनार में शरीक किसानों का कहना था कि ये सेमिनार हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। बदकिस्मती से हमें कपास का मियारी बीज फराहम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कपास का उगाव कम होता है। आज के इस सेमिनार को जो है वो मैं सराहता हूँ कि FFC वालों ने किसान के लिए एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, ठीक है। और मेरी इसमें जो है किसान को बेसिकली उन्होंने फर्टिलाइजेशन और सीड और पेस्टिसाइड के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं, ठीक है। किसान जो है वो पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार रखता है और मेरी जो है गवर्नमेंट से भी और इन तमाम फर्टिलाइजेशन के डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश है कि इन ऐसे सेमिनार्स को जो है वो लोकल बेसिस पे, गांव की बेसिस पे और कस्बों की बेसिस पे भी ऑर्गेनाइज किया जा सके। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा FFC की तरफ होना। ये सानू जिम्मेदारों में बड़ी फिक्र मिली कि खाद का खर्चा ना साडा वो बेतुका हो जाता सीगा। असी DAP ज़्यादा इस्तेमाल करते सी जिहदी जरूरत नहीं सी हुंदी, इस करके वो जिहड़ा इन्हां ने सानू दी मकदार समझाई है कि DAP की जगह SOP करो, NP करो, दूसरी यूरिया खादा जिस तरह वो जिंक वाली खाद आ गई है, इन्होंने खादा का ये चीज़ों का जिम्मेदार नहीं पता। ये चीज़ा जिम्मेदार को पता लगेगा तो वो उसका खर्चा घट जाएगा, औसत बढ़ जाएगी। किसानों को कपास की काश्त और पैदावार बढ़ाने के हवाले से आगाही फराहम करना खुश आइंद इकदाम है। कपास की बेहतर पैदावार से न सिर्फ किसान बल्कि मुल्क के माशी हालात भी बेहतर हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादिकाबाद। पोलियो से पाक मुआशरे कमिश्नर मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पसीर। महकमे सेहत हुकाम का कहना है कि 5 दिन में 9,97,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। महकमे सेहत ने मुहिम के दौरान 97.53% टारगेट मुकम्मल किया। पोलियो टीमों ने 9,97,500 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। गुज़िश्ता रोज 17,262 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि मुहिम के दौरान 50 वालिदैन ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया। 44 वालिदैन को समझाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। 6 बच्चों के वालिदैन को मनाने की कोशिश की जाएगी। ना मानने पर FIR दर्ज होगी, जबकि 39,000 रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाने के लिए टीमें फील्ड में रहेंगी। महकमा सेहत की जानिब से 4,000 से ज्यादा टीमों ने इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने के लिए काम किया। कैमरा टीम के हमरा बिलाल न्याजी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में टमाटर की फसल पक कर तैयार हो गई। खेतों में टमाटर की फसल की बर्दाश्त का अमल शुरू हो गया। काश्तकारों का कहना था कि टमाटर की फसल को जनवरी में काश्त और मई के आगाज में बर्दाश्त किया जाता है।
मुल्तान में टमाटर की फसल तैयार हो गई। खेतों में टमाटर की फसल की बर्दाश्त का अमल शुरू हो गया। किसानों का कहना है कि रवां साल टमाटर की फसल बीमारियों और पेस्ट के हमले से महफूज रही है। मंडी में 12 किलोग्राम की पल्ली 250 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही है। काश्तकार कहते हैं कि इस साल खादों की कीमत में बहुत इजाफा हुआ, लेकिन टमाटर की कीमत कम मिल रही है। फरवरी में काश किया था ये जनाब, तो तकरीबन ये 200 से 250 पल्ली निकला थी एक एकड़ में से। अब 250-300 की बिक्री है ये नहीं। हम तो यही कहते हैं भी खाद का रेट भी नीचे है, स्प्रे का भी रेट नीचे है, भी गरीब भी खा सके, चलो जो नॉर्मल है वो बिक रहा है ये। काश्तकारों का मजीद कहना था कि टमाटर की फसल को जनवरी में काश्त और मई के आगाज में बर्दाश्त किया जाता है। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तानियों ने इतवार के रोज तफरी गाहों का रुख कर लिया। फैमिलीज की बड़ी तादाद छुट्टी एंजॉय करने किला काना कासिम बाग पहुंच गई। मुल्तान के बासियों ने छुट्टी के रोज तफरी गाहों का रुख कर लिया। शहरियों की कसीर तादाद छुट्टी एंजॉय करने के लिए किला कोहना कासिम बाग पर पहुंच गई। बच्चों ने दोस्तों के साथ खूब झूले झूले। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बच्चों का ट्रिप यहाँ लेके आए हैं। चूँकि मुल्तान की एक तारीखी हैसियत है, तो जो भी आता है वो किले पे लाजमी आता है, और यहाँ पर जो मुल्तान की तारीख है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। यहाँ म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं तारीख के हवाले से, तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी तारीख से भी और अपने जो आबाओ अजदाद से उनसे भी रोशनास करा सकें। शहरियों का कहना था कि मौसम तो गर्म है मगर सैर तफरी से सेहत बेहतर रहती है। दीगर शहरों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वफ्द भी किले की सैर करने पहुंचे। उनका कहना था कि दोस्तों के हमरा इतवार की छुट्टी मना रहे हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। धूप बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों के साथ बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा है। गर्मी की वजह से थोड़ा मतलब परेशानी तो हमें हो रही है कि अभी कहाँ आ गए हैं, बाकी ठीक है ओवरऑल। मुल्तान के मशहूर तफरीही मकाम दमदमा पर भी शहरियों ने खूब एंजॉय किया। गर्मी को दूर भगाने के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पर खूब हाथ साफ किए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में छुट्टी के रोज खेल के मैदान आबाद। शहरी छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंच गए। मुल्तान में संडे बना फंडे। शहरी ओलिया के बासियों ने स्पोर्ट्स ग्राउंड का रुख कर लिया। छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से मनाने और लुत्फानंदोज होने के लिए बच्चों और नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहे। नौजवानों का कहना था कि एतवार के दिन छुट्टी होती है, जिसे जिस्मानी वर्जिश में गुजारना पसंद करते हैं। बीमारियाँ जो हैं ब्लड प्रेशर वगैरह और मोटापा इस तरह की, वो आपके सामने है, बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम किल करने के लिए अगर हम अपना संडे सही से यूटिलाइज़ करें और अपने टाइम को सही से मैनेज करें कि हमें स्पोर्ट्स के जो टाइम है वो बाकायदा तौर पे स्पोर्ट्स को देना चाहिए, ग्राउंड का टाइम हमें ग्राउंड को देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर है। बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी क्रिकेट खेलते हुए छक्के चौके मारते हुए नजर आए। बच्चों का कहना था कि पूरा हफ्ता पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं, छुट्टी के दिन दोस्तों के हमरा क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा हफ्ता तो यूनिवर्सिटी हमारी जान नहीं छोड़ती। कभी क्विज, कभी असाइनमेंट, ये लेक्चर वो लेक्चर, सुबह से शाम तक बस सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, तो लेक्चर्स रहते हैं सारा दिन। बाकी है कि जब संडे का दिन होता है तो हमारे पास सुबह मैच वगैरह खेल लेते हैं, शाम में भी कभी कभी मैचेस हो जाते हैं। इतवार का दिन एक ही होता है हमारे पास जिसमें हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। वैसे हम स्कूल जाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आज ही दिन मिला हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। पहले इतने दिनों बाद मैंने बैट बॉल खेला। और ग्राउंड बनाने चाहिए इनको, यही रह गया मुल्तान में और कोई नहीं है। यहाँ पर भी ना पानी की सहूलत है, बाकी ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए। पार्किंग है, चलो वो तो अपनी सेफ्टी के लिए, पानी वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। बच्चों ने जहां छुट्टी को खूब एंजॉय किया, वहीं हुकूमत से दरख्वास्त की कि शहर में ग्राउंड की तादाद को बढ़ाया जाए। कैमरामैन हसीब के साथ सलमान जमीर, रोही न्यूज़, मुल्तान। बूरेवाला में सेहतमंद योगा फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल में बच्चे, बूढ़े, नौजवान हर उम्र के योगियों ने शिरकत की। बूरेवाला के गवर्नमेंट हाई स्कूल अजीमाबाद में सेहतमंद योगा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े हर उम्र के योगियों ने शिरकत की। योगियों ने योगा वर्जिश की, ढोल की और थाप पर भंगड़े भी डाले। योगा काउंसलर रियाज योगी का कहना था कि इंशाल्लाह बूरेवाला को सिटी ऑफ योगा बनाएंगे। योगा फेस्टिवल का मकसद योगा की अफादियत को उजागर करना है। ये प्रमोशन थी कि हमने वर्जिश करके पार्क को आबाद करके सेहतमंद रहना है और सेहतमंद बूरेवाला बनाना है। हम यहाँ पे अद्वियात के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्जिश करें, इसको अपनाएं, इसको और अपनी फूड को, अपने खुराक को बेहतर करें, ऑर्गेनिक में आएँ, नेचर की तरफ वापस लौटें, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। तो आज हमने ये अहद किया कि बूरेवाला को सिटी ऑफ योगा और सेहतमंद बूरेवाला बना के छोड़ेंगे। बुजुर्ग योगी का कहना था कि रोजाना योगा करने आएंगे और खुद को सेहतमंद बनाएंगे।
योगा जो है वो खुशी देता है, तंदुरुस्ती देता है और सेहत देता है। इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को योगा की तरफ से सेहतमंद और तंदुरुस्त और खुशी वाला योगा बनाएंगे इंशाल्लाह। जिस्म को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए वर्जिश बहुत जरूरी है। वर्जिश से इंसान सारा दिन चाको चौबंद रहता है और बीमारियों से बचता है। कैमरा टीम के साथ काशिफ चौधरी, रोही बूरेवाला।